in a mixture, accordingly you have to find out the pH. So let's analyze the first solution. First is strong acid. In this section, you have to identify the pH of different kind of solution. The first case we have taken strong acid. Try to understand properly in this section. If I want to pH of solution, I need H plus concentration. Whether it is monobasic, whether it is polybasic. See, if I take example for this, if I take HCl, molarity is 0.1 molar, and HCl is a strong acid. So H plus molarity will be what? 0.1. But if I take H2SO4 and the molarity is 0.05 molar, what is the H plus from H2SO4? If I consider this strong acid, मतलब दोनों ही H plus टूट जाएंगे completely. Nothing is mentioned to you. So H plus becomes what again? This. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए. H plus co-host को तो डेफिनेटली करना चाहिए पार्टिसिपेट. एटलीस्ट एक तो सपोर्ट करे हमें. H plus इक्वल टू 0.05 into 2. तो H2SO4 का 0.05 molar, HCl 0.1 molar. From both the solution, I'm getting how much H plus? Same. 0.1. So when you try to find out the pH will be what? Minus log of H plus. आप निकालेंगे दोनों की वैल्यू सेम आएगी. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ pH निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इंपॉर्टेंट है या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus from acid इंपॉर्टेंट है? Concentration of H plus Concentration of from H acid. plus. Concentration of H plus from acid important है. Any doubt in this? कोई doubt नहीं है. Now one molecule of H2SO4 giving how many H plus? 2. So 0.05 molar H2SO4 will give you how many H plus? 0.1 into 2 कर देंगे सिंपल. तो pH निकालने के टाइम पे फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, चाहे वो अच्छा HCl कैसा एसिड है? मोनोबेसिक. ओनली 1 H plus per molecule can be given. H2SO4 कैसा एसिड है? Diabetic. डायबेसिक. तो डायबेसिक हो या मोनोबेसिक हो फर्क नहीं पड़ता if I'm able to find out the H plus from strong acid. तो consider an aqueous solution of strong acid in which H plus from strong acid is what? C. हमने एसिड का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिया, एसिड से मिलने वाले H plus का कॉन्सेंट्रेशन लिया. अगर हमने मोनोबेसिक ले लिया तो मोनोबेसिक का जो Same ही कॉन्सेंट्रेशन होगा. होगा सेम ही होगा, पर पॉलीबेसिक का पॉलीप्रोटिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी नॉट इक्वल टू H plus फ्रॉम द एसिड. It will be changing because of n factor, because of dependent on the n factor. But if I take monobasic acid, then monoprotic acid, then its concentration of acid should be equal to concentration of H plus because it is a strong acid. It will completely dissociate, almost completely dissociate. तो ये लिखा है consider an aqueous solution of monoprotic strong acid is this. तो concentration of H plus from acid in the solution is C. H plus उसी को मैंने क्या लिख दिया? That is H plus from strong acid is what? C. अब रिएक्शन में अब सॉल्यूशन में क्या 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 रहेंगे? Since we have taken aqueous, it means H2O is taken. HA will dissociate completely to give H plus and A minus. Arrhenius definition. Otherwise, if I use the Bronsted-Lowry definition, HA will accept H plus from water. H plus, it will give H plus to water to form what? H3O plus plus OH minus. OH minus Q, A minus. A minus. But H2 is also there. H2 is a weak electrolyte, so it will dissociate to give H plus and OH minus, or H2 plus H2 giving H3 plus and OH minus. So H plus total will be what? H plus from strong acid and H plus from water. दोनों से H plus मिलेंगे ना? Simultaneous. There's a common species. तो pH निकालोगे, सिर्फ H plus from strong acid तो निकालोगे नहीं. pH तो आपको H2 का भी लेना पड़ेगा. वो डिपेंड करता है. We have to do approximation here. You have to learn approximation here. तो H3O plus total should be equal to H3O plus strong acid plus H3O plus H2O. अब देखिएगा जो थोड़ा सा हमने यहाँ पे सिखाया है ना, ये बड़ी प्यारी चीज है. उसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी सिखाऊंगा, पर ये बहुत ही प्यारी चीज है. देखना कितना आसान से बिना कोई वेरिएबल क्रिएट किए ही बन जाएगा. सो ये कंफर्म हो गया कि H plus total is what? H plus from strong acid plus H plus from water. अब देखिए, when you dissolve HA in water, are you adding charges or are you adding neutral molecule? We are mixing what? Neutral molecule.
So definitely total positive should be always equal to total negative. Yes. ठीक है. But HA will give H plus and A minus and H2O will also give H plus and OH minus. तो हमें क्या करनी पड़ेगी? Total positive. What is the source of positive charge in this molecule, in this system? Only H plus. What is the source of negative charge in the system? OH minus and as well as A minus. Now बताइएगा जो मैं लिख रहा हूँ उसका मीनिंग समझाइएगा. If I write only this, इसका क्या मतलब है? Concentration or molarity of A minus. A minus. Now, one A minus will give how many negative charge? One negative charge. One. If I write 1 into A minus, can I call it concentration of negative charge? From A minus? बोल सकते हैं? हाँ sir. Similarly, can I say that concentration of OH minus into 1, it is what? Concentration of negative charge from OH minus. अच्छा, फिर लिखता हूँ. What is this? Concentration of positive charge from H3O plus. From, because one H3O plus will give one positive. Any doubt in this understanding में? तो अगर आपको आयंस का कॉन्सेंट्रेशन पता है तो आप नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज उससे मिलने वाले का आप निकाल सकते हो. एनी डाउट? तो 1 into H3O plus मतलब 1 into जो मोलारिटी होगा that into 3 होगा ना? 3 क्यों होगा? क्योंकि 3 हाइड्रो. पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं या हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन. 1 H3O plus पे कितने पॉजिटिव चार्ज है? 8. तो टोटल पॉजिटिव कितनी होगी? इनटू 1 कर लेंगे, है ना? हाँ. हेलो, कोई डाउट है इसमें किसी को? और किसी को डाउट है? एक H3O plus से कितने पॉजिटिव मिल जाएगा आपको? एक ही मिलेगा. इसको और भी लिख देते हैं. 1 into ये क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव फ्रॉम H प्लस. तो टोटल जो भी हमने यहाँ लिखा है, ये सब जो भी लिख रहे हैं, ये क्या है? इक्विलिब्रियम की बात है. यूजिंग चार्ज बैलेंस एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. तो H3O प्लस इक्वल टू OH माइनस प्लस A माइनस. ठीक है. टोटल पॉजिटिव इक्वल टू टोटल क्या हो गया? बताइए. नेगेटिव. तो टोटल पॉजिटिव इक्वल टू, यहाँ पे हम समझने के लिए लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बोलो, टोटल पॉजिटिव इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल नेगेटिव. बहुत सिंपल चीजें पढ़ी बेटा, कोई टफ नहीं है, बस नए लग रहे हैं आपको. लिखा. अब यूजिंग मास बैलेंस इक्वेशन और POC ऑन A, मान लो एक A अगर मोनो एटॉमिक है तो A पे हम POC लगा रहे हैं. POC क्या है? POC का मतलब क्या होता है? कंजर्व करना. Since HA is a strong acid, it will completely dissociate into what? A minus. अब मुझे बताओ, 1 मोल ऑफ HA में 1 मोल ऑफ A रहेगा. हाँ. 1 मोल ऑफ A माइनस में 1 मोल ऑफ A रहेगा. और 1 मोल ऑफ HA after dissociation gives what? 1 mole of A minus. Yes. If 1 mole of HA will give 1 mole of A minus, it means whatever HA you have taken, now the number of moles of A minus will be what? Same. तो भाई A minus इक्विलिब्रियम पे इक्वल टू क्या लिखा हमने? HA नॉट. HA नॉट का मतलब इनिशियल. What is HA नॉट? इनिशियल. टेकन जो हमने C लिया था. C लिया था ना? HA नॉट इज C. यहाँ तो कोई डाउट? नो सर. बहुत सिंपल चीजें दो सीखी हमने, चार्ज बैलेंस करना और मास बैलेंस करना. मास मतलब एटम बैलेंस करना. मास बैलेंस बोलते हैं लेकिन एटम बैलेंस किया बेसिकली. नाउ थर्ड इक्वेशन जो हमने लिखा, H3O प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू KW, सब जानते हैं, अभी आपने रिवाइज भी किया होगा. तो OH माइनस इक्वल टू क्या लिखेंगे? KW अपॉन H3O प्लस. वेरी इजी थिंग, कुछ नया नहीं है. अब हमने क्या किया, इस H3O प्लस में OH माइनस की वैल्यू को ऐड कर दिया. तो क्या हो गया बताइए? H3O प्लस इक्वल टू KW अपॉन H3O प्लस प्लस HA नॉट.
बिकॉज हाँ इसको भी ऐड कर दिया, इसको भी ऐड। तो क्या किया वापस बताओगे ये सब? फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी हमारी? चार्ज बैलेंस। ये वाली। इसमें हमने सेकंड और थर्ड को यूज कर लिया। देख लो, A minus is replaced by HA0 and OH minus is replaced by KW upon H3O plus. Any doubt? नो सर। अब HA0 क्या था इनिशियल वैल्यू, HA0 को किससे रिप्लेस कर दिया? C से। तो H3O plus इक्वल टू KW upon H3O plus प्लस C हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। यहाँ तक लिखिए अच्छे से, पहले आराम से टाइम देख। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंपॉर्टेंट है पीएच निकालने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब भी कोई एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दी हो तो पहले आप किसका निकालेंगे? H प्लस का निकालेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए। सर आपने जो ग्रीन पेन से लिखा है वो भी लिखना है ना? नहीं आपकी मर्जी, वो लिख लो, ऐड कर लो ना। वो तो मैं समझाने के लिखा हूँ, तो आपको ऐड करनी तो बॉक्स में ऐड कर लीजिए। ठीक है ना, कोई डाउट? नहीं सर। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यूजिंग चार्ज बैलेंस का मतलब ही क्या होता है? टोटल पॉजिटिव इक्वल टोटल नेगेटिव। तो तीन तीन ही इक्वेशन है ना बेटा? एक इक्वेशन चार्ज बैलेंस, एक इक्वेशन मास बैलेंस, और इक्वेशन एक आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का। उन तीनों से हमने इक्वेशन जनरेट कर ली। डन सर।
अब देखिएगा यहाँ पे if H3O plus concentration of solution is more than 10 power minus 6 molar, the term Kw upon H3O plus will be less than equal to 10 power minus 8. How will you prove it? बहुत simple है. It is nothing but what? OH minus. तो क्या है वो? OH minus ही तो है. हाँ सर. और OH minus concentration is 10 power minus 8. That is, अब ये जो OH minus आया वो कहाँ से मिला बताइए? H2O से मिला? हाँ सर. अगर ये OH minus H2O से मिला तो और H2O जब रिलीज करेगा H plus एंड OH minus दोनों के अमाउंट इक्वल रहेंगे तो H plus फ्रॉम वाटर क्या हो जाएगा? सेम एज OH minus. H plus फ्रॉम वाटर क्या हो जाएगा? दिस. क्लियर है यहाँ तक? सर ये क्या part- किया आपने? देखो समझो अच्छे से. समझोगे नहीं तो फिर नहीं होगा क्योंकि कुछ दम नहीं है. 2 मिनट का काम है. हमारे पास H3O plus एंड OH minus इक्वल टू KW है. ये H3O plus किसका? टोटल. ये OH minus किसका? टोटल इक्वल टू KW. अब H3O plus अगर 10 power minus 6 से ज्यादा तो OH minus will be less than 10 power minus 8 because KW की वैल्यू क्या है? 10 power minus 14. आप ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो ऐड 25 डिग्री सेल्सियस. तो मेंशन नहीं हो तो 25 ही लेते हैं. और ये क्या है? ये कुछ था ही नहीं है. OH minus ही था. तो OH minus will be less than 10 power minus 8 और OH minus मिल किससे रहा है सोल्यूशन में? सिर्फ वाटर से. वाटर से. तो वाटर से OH minus मिल रहा है तो साथ में H plus भी मिलेगा ना. हाँ सर. और जितना OH minus मिलेगा उतना H plus मिलेगा ना. हाँ. बस तो वही लिखा हमने. दैट इज अगर OH minus लेस देन 10 पावर माइनस 8 है तो H3O plus भी लेस देन 10 पावर माइनस 8 ही होगा ना. हाँ सर. बिकॉज दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है सही. ना. अगर सॉल्यूशन का H3O plus 10 पावर माइनस 6 से ज्यादा तो वाटर से मिलने वाले H3O plus की वैल्यू क्या होगी? 10 पावर माइनस 8 से कम. तो 10 पावर माइनस 6 के सामने 10 पावर माइनस 8 को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्या? बिकॉज 10 पावर माइनस 6 अपॉन 10 पावर माइनस 8 लीजिएगा तो ये 100 आता है. तो 10 पावर माइनस 6 इज 100 टाइम्स ऑफ 10 पावर माइनस 8 ना. तो 10 पावर माइनस 6 के सामने 10 पावर माइनस 8 को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ. कोई डाउट है इसमें बताइए. नहीं सर. Therefore H3O plus, since H3O plus is less than 10 power minus 8, H3O plus from water can be neglected इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा. यहाँ तो क्लियर है. अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे H3O plus सॉल्यूशन से मिलने वाला 10 पावर माइनस 6 से ज्यादा है तो KW अपॉन H3O plus will be less than 10 power minus 8 और OH minus will be less than 10 power minus 8. Therefore H3O plus from water will be also less than 10 power minus 8. So H3O plus from water will be neglected because majority of H plus कहाँ से आ रहा होगा? फिर स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा होगा. कोई डाउट इसमें? नो सर. अब देखिए यहाँ पे केस 1 बना रहे हैं. केस 1 सी क्या था बताइए?
H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड था, सी क्या था, H प्लस हाँ फ्रॉम सर। स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड इज मोर देन 10 पावर माइनस 6 और सॉल्यूशन में H प्लस की कंट्रीब्यूशन क्या हो रही है, H प्लस टोटल स्ट्रॉन्ग एसिड से भी आ रही है, वाटर से भी आ रही है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से ही 10 पावर माइनस 6 से ज्यादा मिल जाए तो टोटल डेफिनेटली क्या होगी, 10 पावर माइनस 6 से ज्यादा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने वाला H प्लस 10 पावर H प्लस भी क्या होगी, 10 पावर माइनस 6 से ज्यादा होगी ना, हाँ सर। बिकॉज टोटल H प्लस इज नथिंग बट एसिड प्लस वाटर। पर अगर मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने वाला H प्लस इट इज मोर देन 10 पावर माइनस 6, तो इट इज ऑलरेडी हायर, तो कैन वी नेग्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस, यस। सेम काम कर सकते हैं। If C is more than 10 power minus 6, then contribution of H2O towards H3O plus is negligible in comparison to H3O plus by acid. तो H3O plus simply equal to क्या हो जाएगी, that is Kw upon H3O plus can be what, neglected। समझ गए? हेलो, हाँ सर। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सब क्या है, सेम। सेम। तो अगर आप वाटर से मिलने वाले H प्लस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली आप इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली आप इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इक्वेशन किसके फॉर्मेट में आ जाएगी, H3O प्लस इक्वल टू प्लस KW अपॉन H3O प्लस नेग्लेक्ट हो गया तो क्या बचता है, C बचेगा ना। हेलो, सर बट अगर इसे निगलेक्ट करेंगे तो चार्जेस का कुछ डिफरेंस नहीं आएगा? नहीं, चार्ज बैलेंस मास बैलेंस को यूज करके हमने फाइनल इक्वेशन लाया। व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन, दिस वन यूज करके ले आया इक्वेशन। अब बैक थोड़ी जाना है, हमने वो सब इक्वेशन करके जनरेट लाया, अब इसमें अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। अंडरस्टूड? यस। तो ये आ गया। अब अगर केस 2 लेते हैं, केस 2, इफ C इज लेस देन 10 पावर माइनस 6 तो नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर 10 पावर माइनस 6 से ज्यादा हो तो ही अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, बिकॉज अगर 10 पावर माइनस 6 से ज्यादा हुआ तो ये वैल्यू 10 पावर माइनस 6 से ज्यादा हो गया और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, 10 पावर माइनस 8 से कम हो गई। तो इस 10 पावर माइनस 8 से कम वाली वैल्यू को 10 पावर माइनस 6 से के सामने हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते थे। लेकिन अगर C की वैल्यू ही कम है, कैन वी नेग्लेक्ट द अदर पार्ट, नहीं कर नो। सकते नेग्लेक्ट, तो उसको एज इट इज रख दिया। एज इट इज रखा, देखिएगा एज इट इज रखने से क्या बन गया, देखिए क्वालिटी इक्वेशन बना, बताओ। एज इट इज रखने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ, देखिए। हाँ सर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया तो इक्वेशन आया। नेगेटिव वैल्यू की हमने इग्नोर कर दिया, दो वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते ना। H प्लस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या कभी, नहीं। नहीं हो सकती। तो इक्वेशन आ गया ये। समझ में आया? तो एक केस आया 10 पावर माइनस 6 से ज्यादा और एक केस क्या आ गई, 10 पावर माइनस 6 से, बोलो, कम। कम। और इसकी इक्वेशन आ गई C प्लस रूट अंडर C स्क्वायर प्लस 4KW, निकालेंगे H प्लस दोनों। और H प्लस, अच्छा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये H प्लस क्या है, टोटल इन सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। ये H प्लस क्या है, टोटल अप्रोक्सीमेटली C के इक्वल है, बिकॉज टोटल ही था ना, हमने अप्रोक्सीमेशन किया और क्या नेग्लेक्ट कर दिया, ये नेग्लेक्ट कर दिया ना, हाँ सर। तो टोटल ही रहेगा। ये भी क्या है, टोटल H प्लस इन सॉल्यूशन। तो पीएच निकाल लेंगे फिर इससे।
ठीक है, केस लिखिए, केस 1 केस 2 लिखिए। सर इसके ऊपर भी आपने एक स्टेटमेंट लिखा था वो लिखना है। हाँ हाँ, ऐड कर लीजिए। हर एक केसेस पे अगर एक क्लास बीत जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार बीत गया, समझ में आ गई, फॉर्मेट वही है, बार बार क्वेश्चन आएंगे, पीएस निकालो, फटाक से फॉर्मूले में डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। सर अभी इससे जो आंसर आएगा पीएच निकालने के लिए उसका माइनस लॉग लेंगे ना। हाँ, वो तो बाद में कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। कितने इक्वेशन है दिशा? चार्ज बैलेंस, मास बैलेंस, एनीपोर्ट ऑफ वाटर, इतने इक्वेशन है, इसी को हैंडल करनी है ना। हाँ सर। बस कंप्लीट हो गया। डन हो गया। सर एक मिनट। हम्म डन सर। देखो, मैं इस चीज को एक अलग तरीके से फिर हैंडल कर रहा हूँ। तो देख, चार्ज बैलेंस से हो गई, चार्ज बैलेंस लिख दिया हमने।
Consider an aqueous solution of strong monobasic acid. स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, HA। HA क्या है? मोनोबेसिक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। रिवाइज हो रही है, जो ऊपर आपने देखा फॉर्मूला देखा, रिवाइज हो रही है, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 10⁻⁶ से ज्यादा है तो कुछ करना ही नहीं है, वॉट एवर H प्लस इज देयर इट इज कमिंग फ्रॉम वेयर? स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच निकाल लेंगे, है ना? हाँ सर। ठीक है, इफ यार को लिख लेते हैं सर, HA टूट के क्या बनेगा? H प्लस प्लस A माइनस, है ना? बताइए। हाँ सर। अगर ये C लिया स्टार्टिंग में 0 0, और ये 0 हो जाएगा और ये CC बन जाएगा। हाँ सर। यहीं पे केस बना लेते हैं। If C is concentration of H plus from HA, that is HA is what? C। ये लिख दिया हमने। अब केस 1 लिख लेते हैं। केस 1, if C is more than equal to 10⁻⁶, जब ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या करनी है? नेग्लेक्ट दी कंट्रीब्यूशन ऑफ H plus from water. सिंपल तरह लिख देते हैं, ऊपर तो समझाया मैंने इतना अच्छे से, चार्ज बैलेंस मास बैलेंस करके कराया, तो रिजल्ट लिख दिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ H प्लस और H3O प्लस फ्रॉम वाटर, Water. लिख दिया। ठीक है, तो H3O प्लस क्या बन जाएगा सर? H3O प्लस टोटल क्या बन जाएगा? C. C। कोई डाउट नहीं है, पीएच निकल जाएगा। केस 2, ठीक है, H प्लस इक्वल टू C। केस 2 यहाँ लिख लेते हैं, C इज लेस देन 10⁻⁶। ये कैसे कर रहे हैं? HA, तो यहाँ भी चाहते हैं तो वाटर के फॉर्म में लिख दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा? H3O प्लस लिख दें, यहाँ भी HA प्लस H2O गिविंग H3O प्लस प्लस A माइनस, ये C है 0 0, ये क्या हो जाएगा? 0 C और C, पर साथ में एक और इक्वेशन होगी, है ना? ये T इक्वल टू क्या होता है? 0। ये क्या होता है? इक्विलिब्रियम। T इक्वल टू 0, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम। क्यों 0 बचा? बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट था। Now what will happen to the H2O? H2O plus H2O giving H3O plus plus OH minus. OH minus. But since there is a source of H plus in the solution, it cannot be 10⁻⁷। जब प्योर वाटर होता है तभी pH 7 आती है, अगर प्योर वाटर नहीं होगा तो pH चेंज होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये क्या ले लेंगे? बोलिए, ये X जनरेट होगा,
मुझे पता नहीं ना कितना जनरेट होगा, डिसोसिएट होगा तो एक्स जनरेट होगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, नेट H प्लस क्या होगी, दिस, और ये तो एक्स रह जाएगा। मतलब वाटर से मिलने वाला एक्स है H3O प्लस, बट एसिड से मिलने वाला भी सी था, पर नेट क्या हो जाएगी फिर, C plus X। यही था साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ये क्लैरिटी है। हाँ सर। C प्लस एक्स, ठीक है। तो नेट H3O प्लस कितना हो गया, C plus X। C प्लस एक्स। नेट OH माइनस कितना हो गया, X। एक्स। और किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए H3O प्लस एंड OH माइनस का प्रोडक्ट क्या होता 10 to the power minus 40। है ना, आनी पॉइंट ऑफ वाटर। कोई डाउट? No sir। तो बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये C प्लस एक्स होगा इंटू एक्स होगा इक्वल टू क्या आएगा, KW। क्वाड्रेटिक यहाँ भी बनेगी, माइनस KW इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस C प्लस माइनस C स्क्वायर प्लस KW अपॉन 2। एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस C प्लस C स्क्वायर प्लस 4KW ना, क्वाड्रेटिक 4 इक्वेशन kW। 4KW, 4KW अपॉन जो ऊपर क्या था वही है, कुछ अलग नहीं, 10। तो ये x क्या निकला, व्हाट इज x हियर, Total H3O plus in solution at x क्या equilibrium। है, x व्हाट इज x, x इज H प्लस concentration from Water। water only, और OH minus concentration from water। Water। आसान है। हाँ सर। नेट H प्लस कितना होगा, X plus C। C प्लस एक्स, इसको ऐड कर देंगे आप। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव Negative sign। वैल्यू, साइन नहीं, नेगेटिव वैल्यू। हाँ सर। वही। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितनी आएगी वैल्यू, पुट कर देंगे तो जो ऊपर आया था वही आ जाएगा इक्वेशन, C प्लस C स्क्वायर 4KW अपॉन। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है केस, समझ गए। अच्छा H3O प्लस आ गया, कैन यू टेल मी व्हाट इज द अल्फा फॉर वाटर, बताइए। क्वेश्चन में दे देता हूँ, व्हाट इज द But एक्सप्रेशन फॉर अल्फा वाटर, व्हाट शुड बी द एक्सप्रेशन फॉर अल्फा वाटर, व्हाट शुड बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ, बताइए।
तो वाटर का अल्फा 1 होगा। और वाटर का अल्फा 1 होगा। दिशा कैसे ऐसी बात करते हो, बताओ जरा, सोचो, रुको। अल्फा वाटर की हम निकाल चुके हैं, प्योर वाटर की, ठीक है। सब ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने आंसर दिया उसको कैसे करेक्शन कर रहा हूँ। निकाला था अल्फा 1.8 इंटू 10⁻⁹ आया था, जो बहुत ही कम है। अब मैं अगर पहले से ही H प्लस ऐड कर दूं तो इसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा या कम होगा? कम और होगा। C1 ले लिया तो कम और भी कम हो जाएगा ना? हाँ सर। फिर एनी डाउट, बोलिए। सर मतलब अल्फा इक्वल टू लेस देन 1.8 लिखना है। अल्फा वो क्या होगा, वो तो तुम्हें निकालने के लिए बोला मैंने अभी। तुमने 1 बोल दिया। 1 कैसे हो सकती है? कॉमन एन इफेक्ट हो गई ना, सिर्फ वाटर तो नहीं, एसिड भी है। हाँ सर। अब यहाँ पे चाहे इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर लीजिए इंप्रूवमेंट। H2O प्लस, ये सेम चीजें लिख दीजिए। नेग्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ H प्लस फ्रॉम वाटर। अब चाहते हैं ये लिखा हमने, और यहाँ पे वाटर का भी लिख दीजिए। H2O प्लस H2O गिव्स वाटर लिखा है। यू हैव टू राइट द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पूरा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो HA T को 0 पे C है, 0 0। इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया? C हुआ। इक्विलिब्रियम पे C ही फॉर्म होगा ना, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। फिर वाटर का भी करेंगे, वाटर भी डिसोसिएट होगा। पर हमने आपको दो जगह पे क्यों लिखा है X और X लिखा है? क्योंकि फाइनल इक्विलिब्रियम का सिचुएशन कौन सी है? लास्ट में। लास्ट वाला। तो C प्लस एक्स, तो वहां भी क्या करेंगे आप? C प्लस एक्स यहाँ भी करेंगे। बनेगा वो C, लेकिन अगर वाटर भी है तो टोटल H प्लस क्या हो जाएगी? 10। टोटल H प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। अब आपको एक्स एक्स क्यों लिखा? क्योंकि एक्स को मैंने यहाँ पे अलग से क्यों लिख के दिखाया? क्योंकि एक्स इज व्हाट अमाउंट ऑफ H3O प्लस फ्रॉम वाटर। समझ गए? बताइए। हाँ सर। देखो, देखते हैं ना अच्छे से। H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? C। सी। H प्लस फ्रॉम H3O प्लस, सॉरी, H3O plus from strong acid is C. H3O plus from water क्या है? X। एक्स। और टोटल H3O plus क्या है? सी प्लस एक्स। C plus X। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? हाँ सर। अब सिंस
C is more than equal to 10 power minus 6, तो H3O प्लस टोटल क्या हो जाएगा? C। ठीक है, तो H प्लस निकाल लेंगे आप, कोई डाउट नहीं है। पीएच भी निकाल लेंगे। पीएच क्या हो जाएगी? माइनस लॉग सी, यही होगा ना, माइनस लॉग ऑफ सी हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है बताओ? नो सर। अब मुझे बताओ फिर से वही चीज, के डब्ल्यू वाली। के डब्ल्यू क्या होती है? टोटल H3O प्लस इंटू टोटल OH माइनस होता है। टोटल H3O प्लस कितनी है? C है। OH माइनस कितना है? X है। यहाँ पे OH माइनस होगा, OH माइनस X है। तो फ्रॉम दिस कैन वी से दैट OH minus is nothing but equal to X, nothing but KW upon C। यहाँ तो कोई डाउट बोलो? नो सर। अच्छा, अब रिकॉल करो, अगर H2O की कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन H2O? 55.5। तो ये X को आप किस फॉर्म में लिखेंगे? C अल्फा के टर्म में लिखेंगे ना? हाँ सर। C क्या होगी? 1000/18। हाँ। तो अल्फा ऑफ वाटर सिंपली क्या होगा? X अपॉन 1000/18। X अपॉन 1000/18। X हो गया OH माइनस। OH माइनस अगर फॉर्म हुआ है उतना ही कंज्यूम हुआ होगा ना? What is the definition of alpha? Amount consumed upon amount taken. Amount consumed upon amount taken. So this is the value of alpha. Case 2 में C is less than 10 power minus 6, Ha plus H2 H3 plus plus A minus। लिखा हमने सब कुछ, X निकल गया, यहाँ सब कुछ निकल गया, X की वैल्यू भी आ गई। फिर से मैं यहाँ पे पूछूंगा, what is the concentration of OH minus? X। Yes। तो यहाँ भी अगर H2O कॉन्सेंट्रेशन 1000/1000 है, 1000/18 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? X अपॉन 1000/18। वेरी गुड, सिंपल, इतना ही तो है। डन। सर तो आपने यही पूछा था क्या? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे और भी कम हो जाएगी, 1.8 × 10⁻9 से और भी कम हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है बताओ? रिपीटेटिव है, बिल्कुल रिपीटेटिव है। तो फॉर्मूले वही आ गए ना। फॉर्मूले क्या है? या तो H3O प्लस इक्वल टू C आएगा जब C मोर देन 10⁻6 होगा, नहीं तो फिर ये आएगा। ठीक है ना, बोलो। हाँ सर। 2 क्वेश्चन करिए। करना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट पीएच, देखना क्वेश्चन कितना आसान होगा। कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन सॉल्व करिए।
Calculate pH for 0.2 molar HCl, 0.3 molar H2SO4, 0.04 molar HNO3. क्वेश्चन लिखा तुमने? 3 क्वेश्चन छोटे छोटे दिए हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। देखो दिशा, सुमित, सब ध्यान दे जो मैंने देखिएगा। ये पूरा हमने किसके लिए पढ़ा? अभी एसिड के लिए पढ़ा। हाँ सर। अब ये अगर बेस के लिए आएगा चीजें, बेस के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आएगा, तो बताओ यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगी? OH माइनस इक्वल OH टू, minus approximately equal to C. ठीक है। यहाँ भी क्या आएगा? OH माइनस इक्वल टू C। अच्छा, OH माइनस निकाल लिया आपने, तो POH निकाल लोगे। POH हाँ निकाल सर। लोगे तो pH प्लस POH इक्वल टू क्या होता है? 14। तो वहां से pH निकाल लेंगे। तो एक स्टेप बस ज्यादा होगा। मेथड बिल्कुल सेम है बेस के लिए। कोई डाउट बोलो? नो सर। पूरा प्रोसीजर ही बेस के लिए सेम हो जाएगा। वहां पे BOH हमने HA लेके किया, वहां पे बेस को लेके कर लेंगे, पूरी रिजल्ट क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। You can use log table if required, if log is required. क्वेश्चन लिखा सबने? क्वेश्चन लिख नहीं लीजिए। सर।
क्लियर दिस क्वेश्चन? हाँ सर। ओके ठीक। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट क्या पीएच है बताओ? सर 3 आया। 3 पीएच तो नहीं आएगा शायद। पीएच 3 कैसे हो सकता है फर्स्ट में? HCl dissociate to give H plus and Cl minus. This is 0.01, ये हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 0.01 and 0.01. What is this? C. C is more than what? 10 per minus 6. Therefore H3O plus total क्या हो जाएगी? 10 to the power minus, sorry 0.01. 0.01 या 10 per minus 2. तो 10 पर माइनस 3 होगा ना? 0.01 को 10 per minus 3 लिखते हैं। तो माइनस लॉग 10 पर माइनस 2 दैट इज 2 हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट 10 पर माइनस 7 मोलर दिया हुआ है, डेफिनेटली 10 पर माइनस 7 इज लेस देन 10 पर माइनस 6। क्वेश्चन सॉल्विंग में पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। देखिए आप, तो मतलब यहाँ पे कौन सी मेथड लगानी है, मैं पूरी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ फिर से। HCl will dissociate to give H plus and Cl minus. What is this C? तो ये हमने अगर C लिया तो 0 0, फिर ये 0 CC हो जाएगा। वाटर का gives H3O plus plus, आप सिर्फ H plus OH minus भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं। तो ये XX बनता है, पर नेट सोल्यूशन में क्या होगा? C plus X. C plus X and X पूरी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। देखिए फॉर एनी एक्वा सॉल्यूशन, अब चाह कर भी कैसे भूलेंगे? अब चाह ही लिए कि नहीं सीखना बात अलग होती है। अब चाह लेंगे कि मुझे नहीं भूलना है तो अब कभी नहीं भूल सकते। फॉर एनी एक्वा सॉल्यूशन KW क्या होती है? H plus into OH minus और H3O plus into OH minus। सिंपली क्या लिख देंगे? C plus X into X, इसी से X की वैल्यू आ जाएगी। नेट H plus क्या होगा? C plus X। तो नेट H plus का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने? C plus रूट अंडर C स्क्वायर प्लस 4KW अपॉन 2, और C की वैल्यू क्या है? 10 पावर माइनस 7। ये हो गया, तो C की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। C की वैल्यू क्या थी? 10 पर माइनस 7 प्लस 10 पर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 पर माइनस 7, सॉरी 14 अपॉन 2। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। 10 पर माइनस 7 आप कॉमन ले लोगे,
तो 1 प्लस रूट अंडर क्या आएगा 5/2। इसको सॉल्व करेंगे आप, रूट की वैल्यू पुट करेंगे तो 1.62 इंटू 10⁻⁷ और पीएच निकालेंगे। डेफिनेटली क्या है, टोटल की बात कर रहे हैं ना। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस और माइनस लॉग ऑफ H3 प्लस, तो माइनस लॉग ऑफ 1.62 इंटू 10⁻⁷। अब 1.62 को अप्रोक्सीमेटली हम सॉल्व कर सकते हैं 1.6 लेके, तो लॉग का मुझे वैल्यू बहुत ज्यादा लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली अगर आप लॉग टेबल देख लेंगे तो निकाल सकते हैं कुछ वैल्यू। इसकी वैल्यू आएगी 6.79। अब एसिड जो हमने ऐड किया बहुत कम ऐड किया एसिड हमने बहुत ही कम ऐड किया, फिर भी सॉल्यूशन एसिडिक होगी। बिकॉज सॉल्यूशन अगर एक बड़े से टब में अगर एक ड्रॉप भी एसिड डाल देंगे तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक ओनली। सिर्फ वाटर से 10⁻⁷ आ रहा है, तो आपने जरा सा भी ऐड किया तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। डन, क्लियर। हाँ सर। अब कैलकुलेट पीएच ऑफ, अभी सब क्वेश्चन काफी आसान है, कोई दम नहीं सब में। इन सब में, इन सभी केसेस में क्या दिख रही है, ग्रेटर देन 10⁻⁶। सॉरी C इज मोर देन 10⁻⁶। C 10⁻⁶ से क्या है, ज्यादा है, और C 10⁻⁶ से ज्यादा है सबका पीएच क्या हो जाएगा, इसका पीएच क्या होगा बोलो, माइनस लॉग 0.2 इसका, माइनस लॉग 0.6। वेरी गुड 0.6। बस यही चेक करवाने के लिए तीन ऑप्शन दिए थे आपको। यहाँ पे क्या होगा, माइनस लॉग 0.0 हो गया। पर आप सॉल्व करोगे तो लॉग टेबल यूज कर रहे थे या खुद से कर रहे थे, सर लॉग टेबल देखा बट लॉग फिर भी नहीं, नहीं समझ में। नहीं लॉग टेबल यूज नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि लॉग टेबल जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन चीजों पे। सिंपल कैलकुलेशन जब रहता है, log 1 क्या होती है 0, log 2 0.3010। I told you this values already, 0.477। log 4 क्या होगा, log 2 स्क्वायर या 2 log 2। तो log 2 पता है तो 2 log 2 निकाल लोगे ना। log 5 0.699 अप्रोक्सीमेटली। log 6 log 2 प्लस log 3, log 2 पता है, log 3 पता है। log 7 0.845 शायद। log 8 क्या ले सकते हैं, 2⁻³ 3 log 2। log 9 3 square 2 log 3। You have to use this value. log 10 all are base 10, ये यहाँ पे करनी है। तो माइनस लॉग 0.2 है, तो log 0.2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 log 2। हाँ 2/10 कर सकते हैं। तो log 10 माइनस क्या हो जाएगा, log 2। log 10 क्या होगी 1, 0.2 और 0.3 0.7। ठीक है, वैसे ही आप सभी कर लेना। थर्ड वाला हुआ क्वेश्चन, सर इसमें अल्फा फाइंड करना है क्या थर्ड वाले इसमें? ऑब्वियसली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाउ इज दिस अफेक्टेड का मतलब पहले अल्फा फाइंड करोगे तभी तो चेक करोगे। सर वो अल्फा 1.8 into 10⁻⁻10 आ रहा है। आ रहा है क्या, वो उतना आसान नहीं है वो। मैं क्या करता हूँ, इसको पहले लिख देता हूँ, उसको बाद में कर देता हूँ। दो क्वेश्चन क्यों दिया मैंने आपको, दोनों ही क्वेश्चन टफ है। टफ मतलब जो पढ़ा है उससे बाहर नहीं है, नेवर। अब मुझे बताओ 10⁻⁴ मोलर HCl है,
10 पर माइनस 4 मोल HCl है, तो C की वैल्यू क्या हो गई? और ये मोर देन क्या है? 10 है ना? हाँ सर। तो H3O प्लस क्या हो जाएगा टोटल? 10 to the power minus 4. 4। तो OH माइनस क्या होगा? KW अपॉन C। ये तो कोई डाउट नहीं। नहीं सर। 10 पर माइनस 10 OH माइनस मिल गया। जो OH माइनस है वही आपका वाटर से आ रहा होगा, और वाटर से अगर OH माइनस X बना है तो डिसोसिएट कितना हुआ होगा? X। अल्फा ऑफ वाटर क्या हो गई? X अपॉन 1000 अपॉन 18, 10 पर माइनस 10 अपॉन 1000 अपॉन 18। कितनी आएगी ये? 1.8 into 10 to the power minus 12. सेम क्वेश्चन, अल्फा ही निकाल ली है इसमें। ऑल्टरनेटिवली यू हैव टू फाइंड व्हाट? फाइंड अल्फा ऑफ वाटर इन 10 पावर माइनस 8 मोलर HCl। यहाँ बड़े आराम से x निकल गया, यहाँ बड़े आराम से x निकल गया ना। ये कौन सी केस की क्वेश्चन हो गए? देखो ये जो पूरा सिस्टम है ना, पूरा हमने यहाँ लिख के दिखाया आपको। देखिए जब C मोर देन ज्यादा हो तो KW क्या होगी? H2 प्लस इंटू OH माइनस, और H2 प्लस क्या है? C। OH माइनस क्या है? X लिखा, और OH माइनस X निकाल लिया हमने। तो अल्फा ऑफ वाटर क्या होगी? OH माइनस जितना फॉर्म होगा उतने ही डिसोसिएट होंगे ना। हाँ सर। टोटल H प्लस नहीं ले सकते, क्योंकि वो टोटल H प्लस में तो किसी और का भी कंट्रीब्यूशन है, पर वॉट एवर OH माइनस यू आर गेटिंग इट इज ओनली फ्रॉम एसिड, और सॉरी इट इज ओनली फ्रॉम वाटर। वाटर। तो इस क्वेश्चन क्लास का क्वेश्चन था वो। लेकिन सेकंड वाला प्रॉब्लम में अल्फा निकालना है तो ये पूरा काम करना पड़ेगा, X निकालना पड़ेगा, फिर अल्फा निकालना। अंडरस्टूड? हाँ सर। क्योंकि उसमें C कम है ना, 10 पर माइनस 8 क्या है? कम है। क्लियर? यस सर। अब बेस के लिए देखो, मैंने अब ये क्वेश्चन जो दिया हमने, बेस के लिए मैंने डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिए। व्हाट इज C हियर? C क्या है इसमें? टोटल OH minus. नहीं, C is concentration of OH minus from strong base. Concentration of OH minus from strong base. मैंने सारे रिजल्ट लिख दिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सब रिजल्ट वही है, सिर्फ OH माइनस होगा इन प्लेस ऑफ H प्लस, रिमेनिंग विल बी सिमिलर। Calculate pH for 0.025 molar in a OH solution. Second, 7.5 into 10 power minus 4 molar calcium hydroxide solution. Second question, calculate alpha of water in 10 power minus 4 molar NaOH solution. Calculate H plus, जब भी H plus कहता है मतलब टोटल पूछ रहा है। pH, pOH and alpha of water in a solution of 2 into 10 power minus 7 molar NaOH. डन यहाँ तक? हेलो, क्लियर है? हाँ थोड़ा सर। एसिड का आपने लिख लिया था, स्पेस छोड़ा था आपने ऑलरेडी, बेस का लिख लीजिए।
व्हाट इज सी? सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिख दिया मैंने, प्लीज राइट इट। सर इसके पहले का नहीं लिखा है। कौन सा लिखा? बोलो। सर आपने कुछ ये सब चेंजेस किया ना, वो नहीं लिखा लेकिन है। नहीं, थोड़ा सिस्टमेटिक किया, तभी लिखने के लिए मना किया था मैंने आपको, मतलब कंसाइज में लिखने के लिए जगह निकाला मैंने, तो उसी को लिख दिया यहाँ, क्योंकि रिएक्शन कॉमन रखा, रिएक्शन कॉमन रखा, केस 1 केस 2 को हमने अलग अलग लिख के दिखा दिया। ठीक है, हेलो। हाँ सर। अब टाइम लिख लो, लिखना चाहे तो लिख लो, क्या दिक्कत है, क्या आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, उसी बार रिवाइज हो जाएगी पूरी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिलेटेड सीख लिए, दोनों केस समझ में आ गई। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो स्ट्रॉन्ग बेस भी हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस भी हो जाएगा। फिर वीक पे जाएंगे तो वीक का जनरलाइज कर देंगे वैसे ही। तो सब 1 बाय 1 चलता जाएगा क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए केस। नेक्स्ट देखिए, थर्ड केस लिख रहे हैं, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली। मतलब पीएच निकालनी है मुझे, पर किसका निकालनी है? जब दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दिया, दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दिया, लाइक दैट। ठीक, तो देखना, इसको समझाने के पहले एक चीज को गौर करिए, मैं पूरा पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। H2SO4 if I take 2 molar, if I assume that it is a strong acid with respect to both dissociation, तो ये कुछ नहीं बचेगा, क्या बनेंगे? 4 molar और ये 2 molar. Now tell me, what is the n factor of H2SO4? 2. What is the n factor of H plus? 1, because charge on ion is what? 1. तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? 4 नॉर्मल, ये इसकी नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? 4 नॉर्मल। नाउ देखो यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ H प्लस, देखिएगा, फ्रॉम एसिड, molarity of H plus from strong acid
is normality of H plus, है ना? It is also equal to normality of, बोलो, strong acid. बहुत सिंपल सा समझाना. तो मुझे अगर मैं दो एसिड को मिला रहा हूँ तो मुझे रिमेनिंग चीजों कोई मतलब है क्या? आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन व्हाट H प्लस. मुझे इफ आई वांट टू pH, इफ आई वांट टू फाइंड द pH, ठीक है ना? हेलो, हाँ सर. नाउ एसिड लिया, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड गिवन होगा, नहीं तो मोलैरिटी गिवन होगा, एन फैक्टर मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेंगे. वॉल्यूम टेकन मिक्स करने के लिए, मोलैरिटी ऑफ H प्लस फ्रॉम एसिड एंड मोल्स ऑफ H प्लस फ्रॉम एसिड. एक टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं. देखिए, इफ आई टेक एसिड, मान लो कोई एसिड 1 ले लिया, नॉर्मेलिटी N1 ले ली, वॉल्यूम V1 ले लिया, मोलैरिटी H प्लस क्या होगा? सेम N1. और मोल्स क्या हो जाएंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होती है? मोल्स. यहाँ पे क्या हो जाएंगे? N2V2. फिर और भी एसिड ऐसे मिक्स करेंगे आप, ऐसे मोल्स और ऐड होंगे, है ना? हाँ सर. तो मोलैरिटी ऑफ H प्लस, या मिक्सचर यहाँ लिख दीजिए, मिक्सचर मिक्स कर दिया, नॉर्मेलिटी हमें नहीं पता, देखते हैं आप क्या बताते हैं. वॉल्यूम तो ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. मोलैरिटी ऐड नहीं कर सकते, मोल्स ऐड कर सकते हैं, N1V1 प्लस N2V2 प्लस दिस कर सकते हैं. तो मोलैरिटी ऑफ H प्लस इन मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होगी? बोलो, क्या लिखोगे? क्या लिखिएगा बताइए? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इन मिक्सचर अपॉन Total volume. टोटल वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम. हो सकता है हम डाइल्यूट भी कर दें, हाँ सर. डाइल्यूट भी कर सकते हैं. वी फाइनल लिख देते हैं. दैट इज H प्लस फ्रॉम मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या आ जाएगा बताइए? N1V1 plus N2V2 upon V1 plus V2. नहीं, अगर ज्यादा होंगे तो V final. It can be written as summation NiVi upon V final. Now V final can be taken as what? V1 plus V2 plus V3 plus something else also if it is diluted. Yes sir. ठीक है. अब देखिए फिर से जो हमने ऊपर पढ़ा कैसे अप्लाई करते हैं, कितने प्यार से. अब एक और काम कर लेते हैं, रुकिए. N1 V1 upon Vf plus N2 V2 upon Vf ऐसे जाएगा. तो you can write N1 dash plus N2 dash like this. What is N1 dash N2 dash? Where N1 dash N2 dash are, बोलो, Normality factor. normalities of acids after mixing. यही होगा ना? एक एसिड का नॉर्मेलिटी क्या होगा? N1 है, मिक्स कर दिया तो N1V1, उसी एसिड के मोल्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? N1V1 अपॉन क्या होगा? टोटल वॉल्यूम.
तो इंडिविजुअल नॉर्मेलिटीज आफ्टर मिक्सिंग की बात कर दी हमने। फिर N1 N2 ये क्या थे? आर नॉर्मेलिटीज ऑफ एसिड्स बिफोर मिक्सिंग। अब केस फिर से यहाँ पे दो बन जाएंगे, पर केस 1 से ही क्वेश्चन आते हैं। इफ H plus mixture from strong acid is more than 10 power minus 6, then H3O plus total is nothing but C. C is here, H plus mixture. If H plus mixture is less than 10 power minus 6, then क्या करनी पड़ेगी? H3O plus total should be equal to, इसको C मान लेते हैं, C plus C square plus 4KW upon 2। बिल्कुल वही आ गया ना। तो सेकेंड इसमें हम लोग वाटर का भी ले रहे हैं ना? हाँ, तभी तो वो इक्वेशन आया। स्ट्रॉन्ग एसिड से टोटल कितना आया? H प्लस आ गया, क्योंकि सभी को ऐड कर दिया सिंपली हमने। ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट pH of resulting solution when 100 ml of, ये थोड़ा फास्ट सॉल्व कर दीजिएगा। कुछ नहीं किया बस हमने, अच्छा ये कौन सी प्रिंसिपल लगाई? प्रिंसिपल डाइल्यूशन लगाया ना, मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला लगा दिया। कुछ नया तो नहीं किया हमने, सिंपल H प्लस का निकाल लिया वैल्यू। हाँ, as 200 ml of 0.01 molar HCl and 200 ml of water। सिर्फ मुझे आप ये सॉल्व करके बता दें सब लोग, कुछ और ऐड कर दूंगा क्वेश्चन, लेकिन आप मुझे ये सॉल्व करके बता दें। फर्स्ट वाला सॉल्व करिए, रिमेनिंग होमवर्क रहेगा, और क्विक करिए, क्विक हो जाएगा, ये कुछ है नहीं उसमें। केस 4 क्या ले लेंगे? मिक्सचर ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस ओनली। क्वेश्चन कर रहे हैं सब लोग? हाँ सर।
तो pH minus log of 0.014 है. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. ये मैं बोल ही नहीं रहा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन का. सर मैंने पूछा कि आंसर माइनस 0.014 है क्या? आएगा ना बेटा, कैसे माइनस आएगा? सब डाइल्यूट सॉल्यूशन है. बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो हो भी सकता है. मुझे देखो, सबसे पहले आप क्या निकालोगे बताओ? H प्लस मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड निकालोगे. कितनी आई वैल्यू? 0.014. 0.014 नहीं, गलत आया, कैलकुलेशन ही गलत आया. क्या आएगा एक्सप्रेशन इसका? क्या आएगा बताइए? H प्लस मिक्सचर क्या आएगा? क्या लिखोगे? N1V1. तो अगर मोलैरिटी 0.05 है तो नॉर्मेलिटी क्या होगी? 0.1. तो 0.1 into 100 प्लस 0.01 into 200 upon what is the final volume? 500. 5, 10, 12 by 12 upon 500. Definitely it is more than what? 10 per minus 10 to 6. the power minus 6. तो pH is nothing but यही क्या हो जाएगा वैल्यू? C माइनस लॉग C. हो गया सॉल्व. अब बोलो से सॉल्व कैसे करें बिना लॉग टेबल के? तो बड़ा आसान है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से. 24 अपॉन क्या हो गया? 1000. तो 24 इंटू 10 पर माइनस क्या हो गया? 3. तो माइनस लॉग ऑफ 24 इंटू 10 पर माइनस 3, इट विल बिकम 3 माइनस लॉग 24. तो 24 में भी दिक्कत आएगी? दिक्कत कुछ नहीं आएगी, वही जो हमने वहां लिखा है वही यहाँ करना है, अलग अलग इंडिविजुअल वाला पार्ट. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? log 3 माइनस log 8. 3 माइनस log 3. यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 log 2. सब ऊपर वाली वैल्यू आ गई. तो 3 माइनस log 3 की वैल्यू 0.477. 3 इंटू 0.3010 की वैल्यू पुट करेंगे अप्रोक्सीमेटली कुछ 1.62 आएगा. क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, कहने के लिए थियरी अलग से, केस अलग से पढ़ाया मैंने. ठीक है. मिश्र स्ट्रॉन्ग बेस ओनली. यहाँ पे क्या निकलेगा? बोलो. यहाँ पे OH माइनस का मिक्सचर आएगा. पूरा उठा ले क्या? कॉपी पेस्ट रिपीटेटिव है कि नहीं बताओ दिशा? हाँ सर. तो ये चैप्टर कैसे टफ हो सकता है? अब बार बार क्लास में पढ़ के आएंगे एक ही चीज को तो दिमाग में सेट नहीं हो जाएगी, क्या बचेगा क्वेश्चन में? पर हम पढ़ते ही नहीं, हम लास्ट में पढ़ेंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगी. तो हम बोलेंगे सर हाथ जोड़ेंगे हम भी. यहाँ पे चेंजेस कर लीजिएगा. हाँ सर. बस सब जगह पे क्या चिपका देनी है? OH है कि नहीं? मुश्किल है कुछ? बताइए. OH माइनस OH माइनस. देखिए आप सिमिलैरिटी देखिए. और ऑनलाइन का यही सब एडवांटेज है, बकवास चीजें लिखनी नहीं पड़ती. और ऑनलाइन में हम पता ही नहीं कर पाते क्या पढ़ते हैं.
और पता है कर भी लिया तो हम कुछ नहीं कर सकते, सच्चाई ये है कि नहीं? बताओ देशा, हाँ हम क्या सर। अब पढ़ेंगे तो हम क्या कर लेंगे? फिर पीओएच निकालोगे इसमें आप, और फिर पीएच कैसे निकालोगे? पीके डब्ल्यू माइनस पीओएच एंड दैट इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच एट 25 डिग्री। इतनी बार लिख रहे हैं एक ही चीज को, कैसे याद नहीं होगा? चांस ही नहीं है। तो थोड़ी मेरे लिए पढ़ लीजिए, मैथ्स पढ़ते हैं इतना, बायो इतना पढ़ते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि जो क्लास में आज पढ़ाया कल क्लास के पहले पढ़ लो। रिपीटेटिव क्वेश्चन डाल दिया फिर से एक, कुछ चीजें रिपीट होती रहेगी, तो ये थ्योरी टफ नहीं हो सकता इसमें कुछ। और जो पेंडिंग राइटिंग वाली पार्ट है वो लिख लीजिएगा। हाँ सर। तो लिखने के टाइम पे ही पढ़ लीजिएगा इसी बहाने। अच्छा ही है, कुछ छोड़ देता हूँ लिखने के लिए आपको, इसी बार नोटबुक पढ़ तो लेंगे, पर स्टार्टिंग से लीजिएगा। 300 ml ऑफ वाटर, क्वेश्चन वही है, कोई नया क्वेश्चन नहीं दिया हमने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस करेंगे। इतनी रहने दीजिए आज की क्लास के लिए, ठीक है सब लोग? हाँ सर। कल की क्लास में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर, फिर वीक एसिड पढ़ेंगे कल। चलिए, थैंक यू बेटा, ओके। थैंक यू सर, बाय। कल कहाँ पे है? कल्याण में है क्या? हाँ सर, कल्याण में ही है। अच्छा, ठीक।